ایک ایسی داستان جسے سن کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ ایک بھٹکتی ہوئی پرچھائی کی پر اسرار و خوفناک داستان، پرچھائی۔ السلام علیکم دوستو، پیش خدمت ہے آج کی ہورر سٹوری پرچھائی، ایپیسوڈ نمبر 17۔ نہیں منشی، ہمیں خود چلنا ہوگا، وڈیرے نے گمبھیر لہجے میں کہا، پھر چاکر کو جانے کا اشارہ کیا۔ تھوڑی دیر بعد وڈیرا اوطاق میں اپنے مخصوص ساخت کے نسبتاً ایک اونچے مونڈے پر بیٹھا تھا۔ سامنے چٹائی پر محمد بخش اور احمد نواز سمیت 4 مزید افراد بیٹھے تھے۔ باقی ان کے عقب میں گوٹھ کے تقریباً 15-20 افراد کھڑے تھے۔ ارے بابا، تم لوگ نیچے کیوں بیٹھے ہو؟ وڈیرے نے چٹائی پر براجمان محمد بخش وغیرہ سے کہا، پھر چاکر کو آواز دے کر بولا، ارے شانو بابا، چارپائی ڈال، میرے سامنے تکڑا بابا، جلدی کر۔ ذرا ہی دیر کے بعد ایک چاکر نے منکش پایوں والی چارپائی ڈال دی اور محمد بخش اپنی کمیٹی کے 5 معزز ساتھیوں کے ساتھ پاؤں لٹکائے ہوئے بیٹھ گیا۔ ہاں بابا، بولو کیسے آنا ہوا؟ ویسے ہم اندر بڑے مصروف تھے، اگر ہم چاہتے تو تم کو ٹال سکتے تھے، مگر ہم نے سوچا زمینوں اور ہاریوں کے معاملات تو چلتے ہی رہتے ہیں، تم لوگوں سے مل لینا چاہیے، بولو کیسے آنا ہوا؟ وڈیرے سالار خان نے روایتی رعونت آمیز لہجے میں محمد بخش کی طرف زور دے کر کہا، پھر اپنی ایک نظر عقب میں کھڑے 15-20 دیہاتیوں پر ڈالی۔ ان کے چہروں پر اس وقت عجیب قسم کی تمتماہٹ طاری تھی۔ محمد بخش نے وڈیرے سالار خان کی بات پر دھیرے سے اسبات میں اپنا سر ہلایا اور پھر ہولے سے کھنکھار کر کہا، سائیں، ہم خود بھی نہیں چاہتے کہ آپ کی مصروفیات میں دخل اندازی کریں، لیکن کل آپ نے شیر گل والے معاملے کو غیر ضروری طول دے کر ہماری بے چینی میں اضافہ کر دیا، جس کی وجہ سے ہمیں بار بار ادھر آنا پڑ رہا ہے۔ بالآخر محمد بخش نے بھی احتیاط کے دائرے میں رہتے ہوئے وڈیرے کی رعونت آمیز انداز گفتگو کا قرض لوٹا دیا۔ وڈیرے کے چہرے پر ایک لمحے کو درستگی کے آثار نمودار ہوئے۔ کوئی اور معاملہ ہوتا تو وہ ان سب کو بیٹھنے کے لیے بھی نہیں کہتا، کھڑے کھڑے اوطاق سے باہر چلتا کر دیتا، مگر چونکہ یہ معاملہ بٹ سائیں پر قاتلانہ حملے کا تھا اور حملہ آور بھی گل شیر خان تھا جو اس کا چاکر خاص تھا، اسی لیے وڈیرے نے تو ان کراہن ان لوگوں کو شرف باریابی بخشا تھا۔ بہرطور وہ محمد بخش کی بات پر اندر ہی اندر تلملایا ضرور تھا، لیکن اپنے مزاج کے خلاف غصے کو برداشت کرنے پر بھی مجبور تھا۔ تاہم اس نے تیز نظر سے محمد بخش کی طرف گھورا اور گمبھیر لہجے میں اسے بولا، بابا، تم لوگ معاملہ خواہ مخواہ بڑھا رہے ہو، جب ہم نے کہہ دیا ہے کہ گل شیر کو ہم نے کڑی سے کڑی سزا دے دی ہے، یہی نہیں بلکہ ہم نے تو اس نامراد کو گوٹھ سے ہی نکال دیا ہے ہمیشہ کے لیے، بھلا اس سے بڑھ کر اور کیا سزا ہو سکتی ہے؟ وڈیرے سالار خان کی بات سن کر محمد بخش نے ایک نظر اپنے ساتھ بیٹھے 2 معززین کی طرف دیکھا۔ انہوں نے بھی جیسے محمد بخش کی نظروں کا مطلب سمجھتے ہوئے تائیدی انداز میں ہولے سے اپنے سروں کو اسباتی جنبش دی۔ یوں لگتا تھا جیسے انہیں وڈیرے کی طرف سے ایسے ہی جواب کی توقع تھی اور وہ اس کا جواب بھی سوچ کر آئے تھے، لہذا محمد بخش نے اپنے معززین کی حمایت لینے کے بعد قدر اٹل اور گہری متانت کے ساتھ وڈیرے سے مخاطب ہو کر کہا، سائیں، یہ معاملہ اتنا معمولی نہ تھا کہ جس کا فیصلہ آپ اکیلے کرتے، یہ اجتماعی اور بہت نازک مسئلہ ہے، آپ کو یہ مسئلہ کھلی کچہری میں سب کے آنکھوں کے سامنے کرنا چاہیے تھا۔ ارے بابا، تم لوگ میری نرمی کا ناجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہے ہو، میں اس گوٹھ کا وڈیرا ہوں
اور وہی کروںگا جو میں چاہوں گا۔ وڈیرے کے لہجے میں اچانک رعونت امیز کرختگی اتر آئی تھی، مگر وہ لوگ بھی وڈیرے کے ساتھ جوابی کارروائی کا تہیہ کر کے آئے تھے، لہذا محمد بخش کے ساتھ آئے 4 معزز ارکان میں سے ایک خاص پکی عمر کے شخص نے نظریں وڈیرے کے چہرے پر گاڑتے ہوئے سپاٹ لہجے میں کہا، وڈیرا سائیں، یہ معاملہ ایسا نہیں ہے کہ آپ اسے صرف تنہا اور طاق میں حل کریں۔ بٹ سائیں سے سارے گوٹ کے ہی لوگوں کو نہیں بلکہ آس پاس کے گوٹ کے لوگوں کو بھی دلی عقیدت ہے۔ معاملہ آپ کے کھیتوں اور ہاریوں کا ہوتا تو الگ بات تھی، مگر یہ معاملہ سب کا ہے، اس لیے آپ کو یہ معاملہ کھلی کچہری میں حل کرنا چاہیے تھا۔ اس کا نام رسول بخش تھا۔ یہ پاس کے گوٹ کا چھوٹا موٹا مگر راجوڑی کمیٹی کی حد تک بارسوخ آدمی تھا۔ وڈیرے نے اس کی سنجیدہ نوعیت کی تلخ گفتگو پر اسے گھور کر دیکھا اور پھر خشونت سے بولا، ارے بابا، جس بٹ سائیں کو تم لوگوں نے اپنا منشد بنا رکھا ہے، کیا تم لوگ اس کی اصل حقیقت سے بھی واقف ہو کہ یہ کون ہے؟ وڈیرے کے لہجے میں گہرے استہزاء کی جھلک کو محسوس کر کے سامنے معزز بیٹھے لوگوں کے بشروں پر ایک لمحے کو ناگواری سی پھیل گئی۔ پھر ایک دوسرے معزز رکن نے وڈیرے سے اسی لہجے میں کہا، وڈیرا سائیں، آپ کو بٹ سائیں کے بارے میں یہ کہنا زیب نہیں دیتا۔ یہ بات سب لوگ جانتے ہیں کہ وہ ایک اللہ والا بندہ ہے، کہاں سے آیا اور کون ہے ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں، مگر مجھے اس سے سروکار ہے بابا، کیونکہ یہ تمہارا بٹ سائیں در حقیقت محمد ملوک ہے، نین ہاری کا بیٹا محمد ملوک۔ اتنا کافی ہے یا اس کے بارے میں اور بھی کچھ سنو گے؟ وڈیرا آپے سے باہر ہونے لگا۔ سامنے بیٹھے لوگوں کو جیسے سانپ سونگھ گیا، بہتیریوں کے چہرے متذبذب کی نظر آنے لگے۔ جو لوگ محمد ملوک کو جانتے تھے وہی تذبذب کا زیادہ شکار ہوئے۔ تم میں اگر کوئی محمد ملوک کے بارے میں نہیں جانتا تو میں بتائی دیتا ہوں۔ وڈیرے کے لہجے میں بدستور زہر گھلا ہوا تھا۔ محمد بخش، جو محمد ملوک کے نام پر سناٹے دار خاموشی میں ڈوب گیا تھا، یکدم بولا، سائیں، ہمیں بٹ سائیں کے ماضی سے کیا لینا؟ انسان دنیا کی بے حسی اور بے مروتی سے دل برداشتہ ہو کر اللہ سے لو لگا لیتا ہے تو یہ برا نہیں ہے۔ اچھا، وڈیرے نے استہزائیہ انداز میں اس کی طرف دیکھ کر کہا، ارے بابا، تو اگر اپنے بٹ سائیں کے ماضی سے کوئی دلچسپی نہیں رکھتا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم بھی اس سے کوئی سروکار نہیں رکھتے۔ تم لوگوں کو بٹ سائیں کی اصلیت کا علم نہیں ہے، یا پھر ہے تو چشمے پوشی کوئی کوشش کر رہے ہو۔ وڈیرے نے بغور محمد بخش کا چہرہ دیکھتے ہوئے تلخی سے کہا، آخر پتہ تو چلے کہ بٹ سائیں نے ماضی میں ایسا کیا کیا ہے کہ آپ اس کے پیچھے پڑ گئے ہیں؟ جواباً ایک تیسرے رکن نے پوچھا۔ وڈیرا ایک دم اپنے مونڈے سے اٹھ کھڑا ہوا اور جوش غیظ سے سرخ ہوتے ہوئے بولا، تم لوگوں کو اس حقیقت کا علم نہیں ہے تو اچھی طرح کان کھول کر سن لو، کیونکہ یہ معاملہ ہماری غیرت کا ہے۔ اگر کوئی تم لوگوں کی بیٹی یا بہن کی عزت سے کھیل کر بعد میں اپنی جان بچانے کے لیے کسی مرشد کا روپ دھار لے تو تم کیا کرو گے؟ وڈیرا سائیں، یہ ٹھیک ہے کہ آپ کی ہم عزت کرتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم… ارے بابا، آ گیا نا غصہ؟ بالکل ایسا ہی غصہ میرے اندر بھی آتش فشاں کی طرح سلگ رہا ہے۔ وڈیرے نے ایک جوش کھائے ہوئے رکن سے کہا، تمہارے اس بٹ سائیں کی حقیقت یہ ہے کہ آج سے 4-5 سال پہلے اس نے میری بیٹی سومری کو ورگلانے کی کوشش کی تھی، اور میں نے اپنی بیٹی کو اس کے ساتھ کاری کر کے ہلاک کر ڈالا تھا۔ پھر محمد ملوک یعنی تمہارا یہ بٹ سائیں جو کارو تھا، جان بچا کر روپوش ہو گیا تھا۔ بعد میں بٹ سائیں کا بھیس بھر کر یہاں آ بیٹھا۔ وڈیرے نے اپنی بات مکمل کر لی۔ اس کا پورا وجود لرز رہا تھا اور اس کے لرزیدہ وجود سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ ماضی کی راکھ تلے دبی چنگاریوں کی گرمی دبانے کی کوشش کر رہا ہے۔ حاضرین کو تو جیسے سانپ سونگھ گیا۔
मोहम्मद बख्श चूंकि उस गोट से ताल्लुक़ रखता था, इसलिए वो माजी के सारे हालात से वाकिफ़ था और गो मगो किसी कफ़ियत में गर्क था। बाकी जो दीगर गोट से ताल्लुक़ रखते थे वो एक दूसरे का मुंह तकने लगे। उधर वडेरे ने भी तहैया कर लिया था कि आज ये किस्सा निमटा कर रहेगा। उसकी जहां दीदा नज़रों ने मोहम्मद बख्श के चेहरे की गंभीर खामोशी को भांपते हुए उससे मुखातब किया, क्यों बाबा बख्शल, तेरे को तो सारी बातों का इल्म है, तू क्यों नहीं बताता इन लोगों को? अगर तेरे को भी मेरी बात पर शक है तो जाओ अपने उस मुर्शिद बट साईं का चेहरा जाकर गौर से देखो और उस गोट के लोगों को भी दिखाओ। जाओ साईं, ये मामला तो राजवाड़ी में ही हल होना चाहिए था, मोहम्मद बख्श ने दबे दबे लहजे में कहा। वडेरा एकदम आंखें निकालता हुआ बोला, हरगिज़ नहीं, मैं अपनी बेटी का खून बहा लेना हराम समझता हूँ और मुझे हक है कि मैं उसका फ़ैसला खुद करूँ, और ये मेरा आखिरी और अटल फ़ैसला है। मैं मोहम्मद मलूक बट साईं को ज़रूर हलाक करूँगा क्योंकि वो कारो है, समझे तुम लोग। वडेरा गुस्से से कपकपा रहा था। ऐसे में वडेरे के चाकरों ने तमाम लोगों को वहाँ से जाने की दरख्वास्त की और फिर सब लोग हज़ार किस्म की हैरतों के साथ खामोशी से लौट गए। औताक में सिर्फ 3 अफराद इस वक्त मौजूद थे। बाहर सर्द और ठठरती रात दबे पांव गुजर रही थी। बाहर सन्नाटा भी चीखता हुआ महसूस हो रहा था। साईं, मामला बहुत नाजुक बल्कि ख़तरनाक सूरत इख्तियार कर गया है। ये इंस्पेक्टर आली जा था। वो बुरी तरह परेशान और बदहवास मालूम हो रहा था। वो अपने सामने मूंढे पर बैठे वडेरे सलार खान से मुखातब था। उसके साथ ही एक बैद की कुर्सी पर मुंशी जुमा खान बराजमान था। इस ज़िम्मेदार हाजी अरसला खान ने वाकई एक ऐसे चश्मदीदा गवाह का खोज लगा लिया है जिसकी बिल पर वो शहर जाकर हारी मीर मोहम्मद का कत्ल केस खुलवाना चाहते हैं। साईं, अगर बात अदालत तक चली गई तो मामला ख़राब हो जाएगा। आप तो फंसेंगे, मैं भी नहीं बैठ सकूंगा। यार इंस्पेक्टर, तूने उस चश्मदीदा गवाह का खोज लगाने की कोशिश क्यों नहीं की? वडेरे ने कहा। इंस्पेक्टर आली जा बोला, साईं, आप क्या समझते हैं मैं हाथ पर हाथ धरे बैठा था कोई? मैंने तो अपनी सी सर तोड़ कोशिश की थी, मगर हाजी बड़ा चालाक आदमी है और मेरा वो 2 टके का उर्दली मोहम्मद बख्श भी उस हाजी की शय पर अकड़ रहा है। इंस्पेक्टर वडेरे ने सन्नाटादार लहजे में कहा। जी साईं, इंस्पेक्टर आली जा ने कहा। हाजी अरसला खान का किस्सा ख़त्म कर दूं मैं तो क्या फिर ये मामला दब जाएगा? तेरा क्या ख्याल है बाबा? वडेरे ने सरसराते लहजे में पूछा। उसकी बात सुनकर इंस्पेक्टर आली जा को अपनी पेशानी अरक आलूद होती हुई महसूस हुई, ताहम वो अंदर से खुश भी था। बोला, हाँ साईं, मेरा ख्याल है कि ये कांटा निकल जाए तो। ये कहते हुए जाने क्यों इंस्पेक्टर आली जा की आवाज़ कपकपा रही थी। बस फिर तू जा और बेफिक्र होकर अपने सरकारी क्वार्टर में जाकर सो जा। वडेरे ने गैर मरी नुक्ते में अपनी नज़रें गाड़ते हुए इसरार भरे लहजे में कहा और इंस्पेक्टर आली जा ने धीरे से असबात में अपना सर हिला दिया। साईं कोडियल और जगन सामरी बहुत परेशान थे। वजह ये थी कि उन्होंने सोमरी के भेस में जिस चुड़ैल को बट साईं के पास उसे हलाक करने के लिए भेजा था वो बुरी तरह नाकाम हो चुकी थी, जिसका मतलब बट साईं के गज़ब को आवाज़ देना था। साईं कोडियल की हालत ज़्यादा पतली हो गई थी। वो जानता था कि बट साईं ने अगर दोबारा कहरो गज़ब के आलम में इस हुजरे की तरफ रुख किया, और ऐसा ज़रूर होना था, तो ये बात उन दोनों के हक़ में बेहतर नहीं होगी। उस गोट के लोगों की नज़रों में साईं कोडियल और जगन सामरी की शख्सियत मशकूक हो सकती थी। स्वामी जी, अब क्या होगा? वो बट साईं तो अब आता ही होगा, साईं कोडियल ने कपकपाते लहजे में जगन से कहा। कुछ नहीं होगा, तू क्यों चिंता करता है, मैं हूं ना, सब संभाल लूँगा। जगन सामरी ने उसे तसल्ली देना चाही, मगर उसके झुर्रियों भरे चेहरे से साफ अयान था कि अभी वो बट साईं से निमटने की कोई तजवीज़ ज़ैर गौर नहीं ला सका।
साईं कोड़ियल ने कहा, स्वामी जी, मेरा ख्याल है कि सोमरी को छोड़ कर ही देना चाहिए, वरना ये बट साईं हमारे पीछे हाथ धोकर पड़ जाएगा। मैं बट साईं से खौफजदा नहीं हूँ, मुझे उसके मुरीदों से डर लगता है। वैसे भी बट साईं पर दोबारा कातलाना हमलों से उसके मुरीदों में शदीद अश्ताल पाया जाता है। सोमरी को आज़ाद करने के बाद हम बट साईं से निमट कर उसका किस्सा पाक कर देंगे और बाद में सोमरी को, लेकिन सोमरी को आज़ाद करने के बाद फिर वो एक खौफनाक परछाई की तरह बट साईं का साया बन जाएगी। हम उसकी मौजूदगी में बट साईं का किस तरह ख़ात्मा कर सकते हैं? जगन सामरी ने कदरे उलझन अमेज परेशानी से उसकी बात काट कर कहा। तो साईं कोड़ियल जगन सामरी की तरफ देखते हुए कदरे हैरत से बोला, स्वामी जी, ये क्या, आपके लिए तो सोमरी कोई हैसियत नहीं रखती, वो तो एक आम रूह है और आप तो हिमालयाई जबलों के बहुत बड़े साहर हैं। फिर अरे नादान, ये बात नहीं, तेरे को अभी शायद हमारी पूरी इसरार ताकतों का इल्म नहीं, लेकिन ये भी दुरुस्त है कि सोमरी कोई आम रूह नहीं है और उसके सीने में आतिशे इंतकाम धक रही है और उसकी बेचैनी और बेकरारी की वजह से ये आलमे अरवा नहीं जा सकी। ये भी उसकी एक बड़ी शक्ति है। असल बात यह है कि वो एक नेक रूह है, अपना सारा वक़्त इबादत इलाही में गुजारती है। बस यहाँ मैं मार खा जाता हूँ। दूसरी अहम बात यह है कि ये पाक धरती है, यहाँ मेरी सहरकारी आधी रह जाती है। सरहद पार की धरती होती तो अलग बात थी। फिर स्वामी जी, मेरी ये तजवीज़ ही बेहतर है। इससे पहले कि बट साईं अपने जान फरोश मरीदों के साथ यहाँ आन धमके, उससे पहले ही सोमरी को आज़ाद कर देना चाहिए। फिर बाद में तसल्ली के साथ दूसरा हल सोचेंगे। उसकी बात सुनकर जगन सामरी ने भी गोमगू के से अंदाज में अपना सर असबात में धीरे से हिला दिया, मगर उसके चेहरे के सोलीदा और मसक तासरात से साफ अयान था कि वो जबरो करा इस बात पर राज़ी हो रहा है। इंस्पेक्टर आलीजा और वडेरे सलार खान की मुश्तरका और दरून खाना हारी मीर मोहम्मद के ख़ानदान यानी मीर नवाज और अहमद नवाज के ख़िलाफ़ रोज़ बरोज़ बढ़ती हुई चीरा दस्तियों के मुँह ज़ोर घोड़े को लगाम देने के लिए ज़िम्मेदार हाजी अरसला खान और तहफ़्फ़ुज़ मुर्शद कमेटी के सरबराह मोहम्मद बख्श ने एक हतमी फ़ैसला कर लिया। अलल सुबह उन्होंने शहर रवाना होकर DPO डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर से मिलने का कसद किया था। DPO इंस्पेक्टर हजूर बख्श पालारी ज़िम्मेदार हाजी अरसला खान का पुराना दोस्त और एक फ़र्द शनास पुलिस ऑफिसर था और उसकी वजह शोहरत कच्चे के इलाकों में ख़तरनाक डाकुओं के गिरोह का किला कमा करने से कायम हुई थी। बहरतौर मोहम्मद बख्श ज़िम्मेदार हाजी साहब के अलावा 2 और भी अफराद उनके हमरा थे। ये लोग सब हाजी साहब की औताक में अलल सुबह इकट्ठे हुए। वहाँ से ये लोग जीप में सवार होकर शहर रवाना हो गए। हाजी साहब अगली सीट पर ड्राइवर के बराबर में, जबकि मोहम्मद बख्श और बाकी 2 अफराद अकबी सीट पर बैठे थे। जीप धूल उड़ाती बल खाती रास्ते पर जा रही थी। आबादी बहुत पीछे रह गई। खेतों खलियानों का सिलसिला भी इख्तिताम पजीर ही था और दाएं जानब कीकर बरी के पेड़ों और खुदरू झाड़ियों की खासी बहुताब थी। दूसरी जानब झाड़ जंकार से लबरेज वसी मैदान। शहर जाने वाली पुख्ता सड़क अभी ज़रा दूर थी। जब जीप ने एक घने दरख्तों के झुंड वाला मोड़ काटा तो अचानक आसपास के कद आदम खुदरू झाड़ियों से फायरिंग शुरू हो गई। गोलियां जीप के वंड स्क्रीन तोड़ती हुई हाजी साहब और ड्राइवर के सीने को छलनी कर गईं। जीप उस वक़्त मोड़ काट रही थी। ड्राइवर के मरते ही वो बेकाबू होकर झाड़ियों में घुस गई। जीप के अकबी नशस्तों पर मोहम्मद बख्श और बाकी 2 अफराद फायरिंग की आवाज़ों के साथ नीचे झुक गए थे। जीप रुक चुकी थी, फायरिंग बंद हो गई थी। खून में लथपथ ड्राइवर की लाश
आड़ी तिरछी सीट पर पड़ी हुई थी, जबकि जिम्मेदार हाजी अरसला खान गोलियां खाते ही जीप के खुले दरवाजे से बाहर गिर चुका था। वो भी चंद लम्हे जान करी के आलम में तड़पने के बाद ख़त्म हो चुका था। मोहम्मद बख्श का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। उसने ज़रा सर उभार कर गिरदो पेश का जायज़ा लेने की कोशिश की। तब फिर उसे ज़रा दूर 4-5 अफराद दौड़ते हुए नज़र आए। हाजी साहब और दीगर साथियों की खून में लथपथ लाशें देखकर अगरचा मोहम्मद बख्श का दिल खून से आंसुओं से भर गया था, लेकिन पुलिस के महकमे में होने की वजह से वो इन मनाजर का आदी था। उसे बहरहाल हाजी साहब जैसे दर्दमंद अल्लाह वाली शख्सियत की यूं बेहमाना मौत पर बहुत दुख था। उसने उन खूनी कातिलों का तआक़ुब करना ज़रूरी समझा और फिर वो एहतियात के साथ गिरदो पेश का जायज़ा लेते हुए उन नामालूम कातिलों के तआक़ुब में हो गया। खेतों में खड़ी निसफ कद आदम फसलों में तेज़ कदमों से चलते हुए मोहम्मद बख्श ने उन सफ़ा कातिलों को एक लम्हे के लिए भी अपनी नज़रों से उजल नहीं होने दिया था। इस तरह दराना वार कातिलों के ताक़ुब में जाना बिलाशुबा ख़तरे से खाली न था। उन्हें ज़रा भी अपने ताक़ुब का शक हो जाता तो वो मोहम्मद बख्श को गोलियों से भूनने में एक लम्हे के लिए भी तामुल ना करते। मोहम्मद बख्श भी आखिर को पुलिस के महकमे से ताल्लुक़ रखता था और एहतियात को बहरहाल मद्दे निगाह रखे हुए था। उसकी कोशिश भी इतनी थी कि इन नामालूम कातिलों का ठिकाना और चेहरे शनास करना चाहता था। ज़िम्मेदार हाजी अरसला खान की खून में लथपथ लाश हनूज उसके चश्मे तसव्वुर में रक्सा थी और मोहम्मद बख्श का सीना गमो गुस्से से भरा हुआ था। सफाकी के इस घिनौने अमल का जिम्मेदार कौन था, इसका भी मोहम्मद बख्श को कुछ अंदाज़ा होने लगा था। काफ़ी देर ताक़ुब में चलते रहने के बाद मोहम्मद बख्श को अचानक ठठक कर रुकना पड़ा। वो अपनी आंखें सुकेड़ कर एक दरख्त की आड़ से उन नामालूम सफ़ा कातिलों के टोले को देखने लगा, क्योंकि वो एक जगह रुक गए थे और थोड़ी देर तक खड़े आपस में सलाह मशवरा करने लगे और फिर इसके बाद वो पांचों मुंतशिर हो गए। मोहम्मद बख्श शदीद तज़ब्ज़ब का शिकार हो गया। वो फैसला नहीं कर पा रहा था कि आखिर वो किसके ताक़ुब में रवाना हो। बिल आखिर उसने उन 2 अफराद के ताक़ुब में जाना ज़रूरी समझा जो बाकी साथियों को हाथ के इशारों से वहीं खड़े अलग अलग जाने की हदायत दे रहे थे और बाद में वो दोनों इकट्ठे एक तरफ को चल पड़े थे। मोहम्मद बख्श खेतों में खड़ी फसलों की आड़ लेता बेदस्तूर ताक़ुब में था। तब फिर अचानक मोहम्मद बख्श बुरी तरह ठटका। उसका दिमाग साईं साईं करने लगा और कंपटियां सुलगने लगी। क्या देखता है, उन दोनों का रुख वडेरे सलार खान की औताक की तरफ है। वो रुका नहीं, चलता रहा। वो अब अच्छी तरह से ये तसल्ली करने के बाद कि खूनी कातिल वडेरे के ही आदमी थे, वो अब उनके चेहरे भी शनाख्त करना चाहता था। लिहाजा वो बेधड़क उनके करीब पहुंचने की कोशिश में तेज़ कदमों के साथ चलने लगा, क्योंकि गोट की आबादी करीब ही आ गई थी। वडेरे की औताक में दाखिल होने से पहले मोहम्मद बख्श करीब पहुंचकर उनके चेहरे देख चुका था। इसरार भरी शाम खासी झुक आई थी। साईं कोडियल और जगन सामरी अपने हुजरे के कमरे ख़ास में मौजूद थे। उस कोठरी नुमा छोटे कमरे में मध्यम रोशनी फैली हुई थी। दीवार पर दोनों के मकरू चेहरे लर्ज़ां थे। जगन सामरी के दोनों हाथों में एक बड़ी सी शीशे की बोतल थी। बोतल के अंदर दूधिया धुआं सा भरा हुआ था और उस बोतल के अंदर सोमरी की नेक रूह कैद थी। साईं कोडियल और जगन सामरी सोमरी को आज़ाद करने का हतमी फैसला कर चुके थे। जगन सामरी का एक हाथ बोतल के ढक्कन की तरफ बढ़ने लगा। साईं कोडियल चंदी चंदी आंखों के साथ बोतल तके जा रहा था। अगले ही लम्हे जगन ने बोतल से ढक्कन हटा दिया। बोतल के अंदर से एक तेज़ सनसनाती हुई आवाज़ खारिज हुई और वो दूसरे ही लम्हे जगन ने महसूस किया कि बोतल का वज़न गैर मामूली तौर पर हल्का हो गया था।
साईं कोड़ियल पसीने में शराबूर हो रहा था। उसे धड़का लगा हुआ था कि कहीं सोमरी की रूह आज़ाद होते ही उनके पीछे ना पड़ जाए। फिर अचानक उस कोठरी नुमा कमरे में एक नस्वानी मगर शोला खून आवाज़ उभरी, काश तुम लोग मुझे आज़ाद ना करते और मैं अपनी कोशिश से आज़ाद होती तो मैं तुम दोनों का बड़ा बुरा हशर करती। लेकिन अब चूंकि तुम दोनों ने ही मुझे खुद ही आज़ाद कर दिया है, इसलिए मैं अब तुम्हें कुछ नहीं कह सकती। मगर एक बात याद रखना, अगर तुमने फिर कभी भट्ट साईं के खिलाफ कोई साजिश की या सुखा जैसी मासूम लड़की को अपने काले मंत्रों में इस्तेमाल किया तो तुम्हारी खैर नहीं होगी।